Hello everyone, this is Alpa Lodaya Dayani from IBT Malad, Mumbai. So today guys I have come up with a short topic, that is introduction to verbs and types of verbs. What is a verb? Can anyone tell? Yeah, verb is any physical action or a mental action or a state of being. कोई भी action हम करते हैं, चाहे वो physical हो चाहे वो mental हो, that is called a verb. ओके यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे वॉक, रन, राइड, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये हम कई सालों से पढ़ते हैं व्हाट आर वर्ब्स. बट यहाँ पे हमें जानना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स. ओके लेट्स सी. टाइप्स ऑफ वर्ब्स में आप देख सकते हो कि वर्ब जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट आर फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके अभी फाइनाइट वर्ब में आप देख सकते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है. एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में जो है दैट इज इन्फिनेटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल. अब हम एक एक वर्ब करके हम लोग आगे पढ़ेंगे. ओके पहली बात तो ये है दैट द फर्स्ट थिंग इज दैट फाइनाइट वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस और एल्स पास्ट टेंस. देयर इज नो फ्यूचर टेंस इन फाइनाइट वर्ब. ओके गाइस रिमेंबर दैट. Finite verb is always used in present tense or past tense. Now we will see one by one what is transitive verb, what is intransitive verb, what is linking, phrasal, infinitive, gerund, etc. Okay, so let's see the finite verbs. Finite verb मैंने आपको पहले ही कह दिया कि they are used in present tense or else past tense. Suppose your transitive verb. Transitive verb is an verb which always requires an object after it. See, we can see here examples. I saw the dog. Here you can see that the subject is I, the object is the dog. I saw, but what I saw? What did I see? I saw the dog. Here the object is the dog. Okay. So transitive verb are those verbs which always has an object after it. Please bring tea. Please bring what? Please bring tea. Tea is an object. So transitive verbs वो verbs है जिनको हमेशा object लगता है उसके बाद. So please bring tea. Tea is our object here. Okay guys, I hope you are getting me. Next we'll come to intransitive verbs. Intransitive verb में हमेशा subject की ज़रूरत होती है, हमेशा. See here, he laughed. यहाँ पे object नहीं है, so object is not required. He is required because he is a subject. So he laughed. Okay. They ran. They is a subject. So transitive verb वो होते हैं जिसमें हमेशा object की ज़रूरत होती है, and intransitive verbs are those which does not require any object but subject is mandatory. Okay. Subject होना ज़रूरी है. So subject here is he laughed. Sorry, he is a subject, they is a subject, and these are verbs. I hope you are getting me. Let's see the next. Linking verb वो होता है जैसे कोई भी verb को link कर रहा हो, जैसे I am happy, okay, am, is, are, was, were, ये सारे linking verbs हैं. कोई भी I am happy, I am sad, I was good at maths. तो ये जो सारे जो verbs है उसको हम linking verb बोलते हैं, जो भी link कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब. फ्रॉम द फ्रेजल वर्ड इटसेल्फ वी कैन कम टू नो दैट फ्रेजेस बनते हैं जिसमें दो वर्ड्स एक साथ, जैसे मुहावरा बोलते हैं हम जिसको. ओके जैसे कि ब्लो अप, ये हमेशा साथ में जाएगा. फाइंड आउट, टू मेक, टू फाइंड आउट, टू मेक आउट, टू सेट अप, टू मेक आउट एक्सेट्रा. ये सारे वर्ड्स जो है उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स. आई होप यू आर गेटिंग मी. सो फ्रेजल वर्ब्स वो है जो ब्लो अप, फाइंड आउट, सेट अप, मेक आउट, जो मुहावरा बनाता है, जो फ्रेजेस बनाता है, जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं. ओके आई होप ये बोथ द एग्जाम्पल्स क्लियर है. ठीक है. विल सी नॉन फाइनाइट वर्ब्स नाउ. नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन तरीके के वर्ब्स हैं. जैसे इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव जो वर्ब है उसमें हमेशा वी हैव टू पुट टू बिफोर द वर्ब. ऑलवेज वी हैव टू पुट to before the verb. Here you can see he was made to clean his room. Clean is a verb over here, but we are putting to before the verb. So it becomes to clean, to shout, to teach, to rub, to dance, to watch. ये जो verbs हैं उसके आगे हम जो पहले before we are putting to, it becomes infinitive.
ओके, इट इज़ वेरी इजी, कोई भी वर्ब के आगे टू लगा दो, उसके साथ हम जोड़ देंगे टू, तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव वर्ब। ओके, नेक्स्ट जेरेंड। अब ये जेरेंड इज एनी वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं और वो नाउन बन जाता है। जैसे कोई भी वर्ब ले लो, यहाँ पे आप देख रहे हो स्मोक इज अ वर्ब, बट वी आर पुटिंग आईएनजी इनटू इट, वी आर एडिंग आईएनजी, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय आईएनजी। कोई भी वर्ब के साथ हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो इट बिकम्स जेरेंड, बट इट फंक्शंस एज नाउन। ये स्मोकिंग जो है वो वर्ड जो है वो नाउन बन जाता है। ओके, सो ही इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग। स्मोकिंग हो गया, डांसिंग हो गया, वॉचिंग हो गया, रबिंग हो गया, ईटिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, ये सारे वर्ब्स जो है, वर्ब्स के साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया, मतलब इट बिकम्स जेरेंड। जेरेंड इज द वर्ब, whatever the verb is, we are adding ing to it, it becomes gerund, but it functions, remember guys, it functions as a noun. I hope you are getting me. Very easy. We'll come to next, participle. Participle verb में कहीं पे भी हम ing लगा रहे हैं या फिर ed लगा रहे हैं कोई भी वर्ब के साथ, और जो फंक्शन करता है एज एन एडजेक्टिव। रिमेंबर गाइज, जेरेंड में हम जो भी कर रहे हैं वो इट फंक्शंस एज ए नाउन, बट इन पार्टिसिपल इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। जैसे कि कोई भी वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाया है या तो ed लगाया है, इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। Here you can see the sleeping boy, boy is there, noun. स्लीप जो है वर्ब है, वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। आई होप यू आर गेटिंग मी। बॉय है, पर कैसा बॉय है? स्लीपिंग बॉय। ओके, the word sleeping boy becomes a participle over here. Okay, we'll see the next example. The injured man, man was there, man is a noun. Okay, I hope you are getting me. Man is a noun here, but man कैसा है? Injured. We are putting वर्ब के आगे हमने ed लगाया है, एंड मैन कैसा है? इज एन इंजर्ड मैन, सो इट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव ओवर हियर। ओके, द इंजर्ड मैन वॉज वेटिंग टू द डॉक्टर। सो इफ वी आर पुटिंग एनी ing और ed to any verbs and it functions as an adjective, it becomes participle verbs. I hope you are getting me. I'll repeat all the three again. Infinitive यानी कोई भी verb के आगे to लगा दो, any verb just put to before the verb, to clean, to rub, to shout, to teach, to dance. Okay, next is gerund. Put any verb which is ending with ing, it functions as a noun. It is like noun, मतलब ये noun बन रहा है। smoking ing लग रहा है, dancing, eating, teaching, watching, ये सारे verbs के साथ हमने ing लगा दिया, it becomes gerund. Okay, नेक्स्ट है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में हम वर्ब के आगे आईएनजी लगा रहे हैं, ईडी लगा रहे हैं, और इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। वेरी इजी। द स्लीपिंग बॉय, बॉय है बट कैसा बॉय है? स्लीपिंग, सो इट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव एंड वी आर पुटिंग आईएनजी एज अ वर्ब, सो इट बिकम्स पार्टिसिपल। ओके, इंजर्ड मैन, मैन है बट कैसा मैन है? इंजर्ड है, ईडी लगा रहे हैं हम, तो ईडी लगा रहे हैं एंड इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव एज वेल, सो इट बिकम्स पार्टिसिपल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल IBT Malayalam. Thank you guys.